Good morning, my dear students. Myself, Dipankar Chakravarti, a faculty of biology, came in front of you to give some idea about the subject biology. First of all, when we opt for the biology subject, we must know that biology in class 11 and 12 together consist of 38 chapters. That is 22 in class 11 and 16 in class 12. There are some elimination in the chapters due to COVID, but all these chapters are equal importance or are having an equal importance in your entrance examination. Now, we all know that biology is a study of life, but here I am in front of you to know or to give you knowledge about the career option in biology. Most of the parents or children who are opting biology subject in class 11, they think that biology means NEET, but that is not the case. That is the first choice, but that is not the only choice for biology students. Along with this NEET, there are 50 plus career options which a child or student can opt and secure their career. So let's come to see what are the career options in biology. First of all, the first choice of any bio student is to crack NEET, National Eligibility Entrance Test. Through this, we opt any of these 5 career: Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, that is MBBS, Bachelor of Dental Science, Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, and Bachelor of Unani Medicine and Surgery. These 5 courses we get through NEET. Now, no state can organize separate test for these 5 courses. Second is ICAR. This ICAR, Indian Council for Agriculture and Research, takes the entrance in all India level like NEET, and they opt for agriculture, forestry, home science, horticulture, sericulture and biotechnology. Okay. Now third is the pharmacist line. Those who know about the proper use of the drugs, that is medicine. First is diploma level, D Pharmacy, B Pharma, Bachelor of Pharma, and M Pharma is the Master of Pharma or Pharmacy. बेसिकली हम इस कोर्सेज में एंट्री ले सकते हैं, एक तो CET के द्वारा, दैट इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि वेरियस स्टेट अपना अलग अलग लेता है. दूसरा है GPAT. GPAT क्या है? ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट. ये एक ऑल इंडिया लेवल में होता है जिसके थ्रू हम इस कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं. थर्ड इज BITSET. BITSET क्या है? बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट, जिसका मेन पर्पस होता है उस एग्जामिनेशन के थ्रू, BITSET के थ्रू ही इन कोर्सेज में एडमिशन देता है एलिजिबल स्टूडेंट्स को. उसके बाद है सर्टेन बैचलर कोर्सेज. इसमें से कुछ बैचलर कोर्सेज इजीली स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है जॉब, जैसे फिजियोथेरेपी. फिजियोथेरेपी एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम सर्टेन एक्सरसाइजेस के थ्रू किसी भी पेशेंट को रिलीफ महसूस कराते हैं फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम, स्पेशली इन केस ऑफ ऑर्थोपेडिक्स जो कि हड्डी से रिलेटेड है, एंड न्यूरो जो कि हमारे नर्व से रिलेटेड है. उस प्रॉब्लम में फिजियोथेरेपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. आजकल तो डाइजेस्टिव सिस्टम, अदर इंडोक्राइन सिस्टम का कोई प्रॉब्लम है, उसमें भी फिजियोथेरेपी का रोल हो चुका है. नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री, जो डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे. ठीक है, उससे डिफरेंट केमिकल्स जो बनता है, जैसे कोई भी एक टैबलेट होता है, एक स्पोर्ट्स पर्सन अपने कैपेसिटी को इन्हांस करने के लिए स्टेरॉइड लेता है, तो उसको कितने अमाउंट में लेना है, उससे सर्टेन लेवल में जैसे ही वो क्रॉस कर जाता है वो डोपिंग टेस्ट में बैन हो जाता है. उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, उसके बाद है एग्रीकल्चर. BSc एग्रीकल्चर इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी बूमिंग ब्रांच ऑफ टूडेज बायोलॉजी फील्ड. फूड टेक्नोलॉजी, ये तो नीड ऑफ द आवर है.
एंड लास्ट इज न्यूट्रिशियन एंड डाइटिशियन। ये एक मोस्ट बूमिंग ब्रांच में से आज के दिन में है, बिकॉज वी आर इन अ एमएनसी कल्चर एंड वेयर वी हैव टू वर्क फॉर 12 to 14 आवर्स। जब हम 12 से 14 घंटा काम करते हैं तो नेचुरल बात है कि हमारा डाइट गड़बड़ाता है, हमारा लाइफस्टाइल गड़बड़ाता है, और जब हमारा लाइफस्टाइल एब्रप्ट होता है वी आर सफरिंग फ्रॉम हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, ओके, हाई ब्लड प्रेशर, and this can be managed only through proper nutrition, and according to the problem we have we must control our diet, and that is provided by the person who is undergoing the course called Bachelor of Science in Nutrition and Dietitian. Next, देखो सभी स्टूडेंट का इकोनॉमिक कंडीशन एक नहीं होता है, कुछ का ऐसा है कि इसको इमीडिएटली जॉब चाहिए विद इन 3 to 4 years. For that these paramedical courses are very helpful. These are in degree mode as well as in diploma mode. डिग्री मोड में क्या होता है, उनका जॉब जो है ज्यादा सिक्योर होता है। सबसे बूमिंग ब्रांच अभी है बीएससी नर्सिंग, नेक्स्ट है ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी जो आई से रिलेटेड है, थर्ड इज बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी समझ ही रहे हैं। उसके बाद है बीएससी इन कार्डियक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जो हार्ट का पेशेंट है उसके लिए जो डिफरेंट टूल्स यूज किया जाता है ताकि उसको प्रॉपर ट्रीट कर सके डॉक्टर, ये हो गया कार्डियक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज बीएससी इन डायलिसिस। वी ऑल नो द किडनी पेशेंट गो डायलिसिस एंड दिस डायलिसिस इज डन बाय अ पर्सन हु इज अंडरगोइंग बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी। न्यूरो टेक्नोलॉजी, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूरो ट्रीटमेंट टू द पर्सन। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, एक ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने में ऑपरेशन थिएटर का प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर टूल्स का रहना भी बहुत जरूरी है, एंड दैट पर्सन हु इज डूइंग बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी ही इज स्पेशलाइज्ड इन दैट। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी। आजकल टेलीमेडिसिन का जमाना है, इसमें इसका बहुत ही यूज होता है। परफ्यूजन टेक्नोलॉजी एक लेटेस्ट ब्रांच है जो अभी डेवलप हो रहा है। और लास्ट है सर्टेन बच्चा जो जन्म लेता है वो जन्म के बाद कान में कम सुनता है या उनका जो स्पीच है वो स्लरिंग होता है, बोलना मतलब एक के ऊपर ओवरलैप करता है, तो उसको ठीक करने के लिए कोर्स है BASLP, बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। इसके साथ साथ है बीएससी इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो ये सब कोर्सेज में उसको इंस्टेंट जॉब का चांसेस है आफ्टर 3 to 4 ईयर ऑफ कंप्लीशन। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बायोलॉजी का ऑप्ट कर रहा है रिसर्च कैरियर, देन he can opt for a entrance test like NEST, जो कि जो डिफरेंट इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस हैं जहां पे या इंस्टीट्यूट्स है जैसे IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, एटॉमिक पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो ये सब में वो नेस्ट के थ्रू जा सकता है या इनका डायरेक्ट एग्जाम भी होता है, ठीक है। तो दीज आर द ऑप्शन। तो ये खाली नहीं समझना है पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी कि अगर हम बायोलॉजी ऑप्ट कर रहे हैं तो बायोलॉजी का मतलब दैट इज नॉट ओनली नीट। अभी मैंने जो ऑप्ट किया और भी कोर्सेज हैं, इन द नेक्स्ट वी विल टेल यू व्हेन वी आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर और व्हेन वी आर इंटरैक्टिंग थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू and good luck for opting biology as a subject. Thank you.